I will speak about revival today, this morning here in America, and to those that are listening in from India and all over the world. मैं बेदारी के बारे में अब इस अमेरिका में जो सुबह है और भारत में जो रात है आपके बीच में बातचीत करना चाहता हूँ। खाना बोले सादा वेज खाना Yeah, we want definition of revival, and there's so many definitions, but let me state to you what is stated in Acts 3:19, then we can take that as a definition for revival. Acts 3:19, I will read it to you. This is what it says: repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. That is what I want to emphasize regarding revival. One thing is conversion, repentance of sins, because of the times of refreshing that comes from the presence of the Lord. और मैं आपके सामने जो बेदारी का जो परिभाषा है वो प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 19 से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ। इसमें इसलिए मन फिराओ और लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो मन फिराव का है और प्रभु के पास लौटने का है, और पापों से प्रभु आपको दूर करेगा। Amen. Revival is not an automatic experience. It is something to be desired, and it is something to be prayed for. बेदारी जो है कोई भी ऐसे चमत्कार या बदलाव नहीं है, ये एक अनुभव का है और हमारे जीवन के लिए एक बदलाव के लिए है। God is the source of revival. It comes from His presence or through His presence, the presence of God among the people. बेदारी का जो स्रोत है वो है परमेश्वर, और परमेश्वर की उपस्थिति में होना यही हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तन और बेदारी को बताता है। Yeah, and through His presence we experience refreshing. We experience it, and change and conversion for the people and also in the community. बेदारी इस बात को हमें बताती है कि हम जीवन में एक बदलाव को लेके आती है, एक नए अनुभव को लेके आती है, नए इच्छाओं को हमारे जीवन में लेके आती है, जो कि हमारे खुद के व्यक्तिगत के लिए और समाज के लिए है। Therefore, we can safely say that revival is God visiting the community, and through His presence, we can say the manifested presence of God, which is different from His omnipresence. That is what will bring change and transformation with the people. बेदारी जो है वो प्रभु के वचन के शब्दों के द्वारा, प्रभु के वचन में होने के द्वारा, उसकी उपस्थिति में रहने के द्वारा, और ये हमारे समाज के लिए, हमारे लिए एक परिवर्तन को लेके आती है। Amen. And I will read to us another scripture just to help us with understanding revival, because we all want revival. And I will read from 2 Chronicles 7, 13 and 14, a familiar passage to all of us. 2 Chronicles 7, 13 and 14. This is what it says: when I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. Verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven
and will forgive their sin and heal their land. और हम इसके लिए वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय का हम पढ़ने जा रहे हैं और उसमें इस प्रकार प्रभु का वचन हमारे सामने, जब 7वें अध्याय का हम 14 और 15 हम पढ़ रहे हैं, उसमें प्रभु हमारे सामने इन शब्दों को लेके आता है कि हमें तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शनों के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। और अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली है और मेरे कान लगे रहेंगे। Yeah, verse 14, it opens up with the word if. The word if is conditional. Conditional, that is for the people of God to initiate a revival, if I may say that. और जो 14वीं आयत है वो इस बात को लेके आती है, यदि यहाँ यदि इस बात को लेके आता है कि यदि मेरे लोग जो मेरे हैं और मेरी सुनते हैं तो उनके जीवन में एक बदलाव होता है और वो बदलाव जो है वो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण है। This is what it says. If my people, who are God's people, you and I, we are God's people because we are believers in Christ Jesus. Therefore, we are children of God. We are sons and daughters of God. So the initiative is with his people. Not only that, my friends, it says, my people who are called by my name. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन इस प्रकार कहता है, यदि मेरी प्रजा, ये प्रजा कौन है, कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने जिन्हें चुना है, जिनको बुलाया है और जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन का आधार बनाया है, प्रभु उनको कहता है मेरे लोग, मेरी प्रजा। और वो लोग जो हैं प्रभु की ओर से चुने गए, अलग किए गए हैं, उन लोग को जो प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहते हैं, उनको वो कहता है मेरे लोग। We are known by the name of God that is in us. The name of God to God is very sacred. The name of God is holy. और उसने हमें नाम लेके बुलाया और हमारा परमेश्वर जो है वो हम अपने नाम से बुलाता है मेरे लोग, मेरी प्रजा। और जब हम उसके नाम से बुलाए गए हैं तो हमारा परमेश्वर जो है वो शुद्ध है और वो पवित्र है। और जब वो शुद्ध और पवित्र है तो वो हमें भी इसी प्रकार समझता है और जानता है। What are we to do? The text that we read today, it suggests to us what to do. And first of all, we need to humble ourselves. और वचन हमें इस प्रकार का कहता है कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए। वचन कहता है कि हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है। Humbling ourselves is acknowledging before God who we are and our wrongdoing. Who we are. We are sinners saved by grace. हाँ, अपने आप को नम्रता और दीनता करने का मतलब यह है कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। हम पापी हैं और हम जब इस बात को स्वीकार करते हैं हम पापी हैं और प्रभु के आगे अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो हम उसके लोग हैं। To be humble is to bring yourself low before God. अपने आप को नम्र करने का मतलब है अपने आप को प्रभु में हमें झुकाना है, हमें अपने आप को प्रभु में नम्र होना है, दीन होना है। Humbling is the opposite of importance. हमें अपने आप को बढ़ावा नहीं देना है, अपने आप को बढ़ावा नहीं देना है, पर अपने आप को नम्रता में लेके आना है। ये नम्रता जो है वो बढ़ावे का विलोम है। Only God is important. We are the created ones. We are sinners saved by grace. And therefore, we need to approach God in a humble
attitude. और पवित्रता इस बात को संबोधित करते, हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, हमें भी अपने आप को, जो कि हम पापी हैं और पापों से हमने उद्धार को प्राप्त किया है, तो हमें अपने पापों का स्वीकार करते हुए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए नम्रता में आना है। A sinner will always bring himself low before God, who is holy, and he will always ask for forgiveness of his sins. एक पापी जो है जब अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, प्रभु के आगे झुक जाता है, तो ये पवित्रता और ये शुद्धता जो प्रभु की ओर से हमारे जीवन के अंदर है, यही हमारे उस पवित्रता और शुद्धता और स्वीकार और अंगीकार करने के द्वारा पापों से प्रभु हमें क्षमा करता है। After humbling yourself, which is the attitude of your heart and your mind, you should pray. God invites us to pray. नम्रता का मतलब ये भी है कि हम अपने आप को जब नम्र करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने हृदय को प्रभु की ओर फेर रहे हैं, और इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता, हमें रोजमर्रा प्रार्थना करनी है। Let me say to you this truth about prayer. Only human beings can pray to their Creator and to their Redeemer. Only human beings. Other animals cannot pray to God. Other creation cannot pray to God. Only human beings can pray to their Creator, who is also their Redeemer. प्रार्थना सिर्फ मनुष्य के लिए यहाँ परमेश्वर कहता है, और वो ही मनुष्य जब प्रार्थना करता है, उसने ये नहीं कहा कि कोई जानवर या जीव जंतु प्रार्थना करे या जो भी सृष्टि की चीज है वो प्रार्थना करे। वो ये चाहता है कि मनुष्य प्रार्थना करे उससे, जो हमारा करने वाला, जो हमारे को बनाने वाला, हमारा सृजनहार है और जो हमें छुड़ाने वाला है, उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। We pray to God because we are dependent on God for everything, and that includes revival and our salvation. और जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है, उस कर्ता के ऊपर है जो हमारे को छुड़ाने वाला है और जो हमारे जीवन में बेदारी को लेके आने वाला है। Prayer, let me state this categorically, prayer will change the world, and prayer will also change the person who is praying. So there are benefits to prayer. It will change the world, and it will also change you, the person who's praying to God. प्रार्थना हम दो भागों में देखते हैं। पहला, जब हम प्रार्थना करते हैं तो संसार को हम बदल सकते हैं। दूसरा, जब हम प्रार्थना करें, एक व्यक्ति को भी वो प्रार्थना जो है वो बदलता है। The other step that you need to take according to our text is seek my face. There is an invitation from the holy God to seek his face. Let us take the opportunity, not only humble ourselves, not only prayer, but seek God's face. हम देखते हैं इस और आयतों में इस प्रकार लिखता है परमेश्वर का वचन, हमें प्रभु की ओर देखना है और जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, जब हम प्रभु की ओर ताकते हैं, जब हम प्रभु की खोज में रखते हैं, प्रभु हमें मिलता है। पर हमें नम्र होने का भी जरूरत है, हमें प्रार्थना की भी जरूरत है, और हमें प्रभु की ओर देखने की भी जरूरत है। Prayer is also part of seeking God. So when you seek God's face, you want an audience with God. और जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हम प्रभु की ओर ताक रहे हैं, और जब हम प्रभु की ओर ताक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु की दर्शक हैं, हम प्रभु के दर्शक लोग हैं। When you seek an audience with God, you want God to hear what you have to say.
और जब हम एक दर्शक के रूप में देखते हैं या एक दर्शक है, तो हमें इस बात को समझ में आता है कि प्रभु जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वो प्रार्थना को सुन रहा है। What are you telling God about your community? What are you telling God about the situation that you are in? What are you telling God about what is happening in your community and in the world today? What are we telling God? हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं? हम अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, हम एक परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं। और प्रार्थना हमें इस बात को बताती है कि हमारे समाज में, इर्द गिर्द में, वातावरण में जो भी बातें हो रही हैं, हम वो परमेश्वर को बताते हैं। To seek his face, you want to be in the presence of God all the time. You want to be in the presence of God, or you want to be in his glory. और परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को निरंतर ताकना का मतलब है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहना, परमेश्वर की ओर ताकते रहना, प्रभु में अपने जीवन को ढूंढने की जरूरत है। To seek his face, you want his favor and his blessings. जब हम उसके मुंह की ओर ताकते हैं तो हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं, और उसके द्वारा जो हमारे जीवन में आशीष है या इच्छाएं हैं वह हमारे जीवन में पूरी होती है। To seek God's face, you want to be intimate with your God. प्रभु के चेहरों को देखने का मतलब है, प्रभु की ओर देखने का मतलब है कि हम उसके साथ अपने आप को संबंधित करते, अपने आप को जोड़ के रखते हैं। Amen. The next step that we need to take, not only seek his face, turn from your wicked ways. और दूसरा हमें प्रभु की ओर ताकने के लिए नहीं, पर अपने पापों से हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। If you are seeking God's face, you should also be equally serious about turning from your wicked ways. They are on the same level, seeking his face and turning from your wicked ways. प्रभु की ओर ताकने का मतलब ये है कि हम अपनी बुरी चालों से फिर रहे हैं, और यही हमारे को बताता है कि जब हम प्रभु को ताकते हैं तो हम अपनी बुरी चालों से हम फिर रहे हैं। Remember this, you cannot fake it with God. You cannot. You have to be genuine. You have to be serious by seeking God and turning from your wicked ways. Where is repentance in our community? Where is repentance in the church? और जब हम देखते हैं कि हम इस बात को देख रहे हैं कि जब हम प्रभु को देख रहे हैं या प्रभु को ताक रहे हैं, हमें अपनी बुरी चाल से फिरने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है, समाज के अंदर कोई बदलाव नहीं है, समाज के अंदर कोई फेर बदल नहीं है, कलीसियाओं में कोई बदलाव नहीं नजर आता है, कोई चाल वो अपनी बुरी चालों से बदलते नहीं है। After we have taken all those steps, then God is ready to answer our prayers, is ready to meet our needs. और जब हम अपने बुरी चाल से फिरते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमारे लिए आशीष को देता है, वो हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। This is what God says, and I will hear from heaven. और वो परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। I normally do this in our church when we have worship, and we are in the presence of God, we are in the presence of God. I normally tell the people, now you tell God what you want, because God is attentive to our prayers. This is what he says, I will hear from heaven.
और जैसे कि मैं अपनी कलीसिया में, जब हम कलीसिया में होते हैं, मैं अपनी कलीसिया को, विश्वासियों को इस प्रकार कहता हूं कि जब हम आराधना कर रहे हैं और अब हम आराधना हो जाती है, उस दौरान हम प्रभु से कहना शुरू करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला है। और जैसे अभी हमने वचन में देखा, वे स्वर्ग से हमारी बातों को सुनता है। Sin in our lives will always cause God not to hear our prayers. Pardon me once Sin, again. sin in our lives will cause God not to answer our prayer. जब हमारे जीवन में पाप होगा तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। Isaiah 59:2. Let me read this verse to all of you. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear you. So that's clear. Amen. If we deal with our sins, if we can continue to turn from our wicked ways, God will always answer our prayers. Can you repeat the verse, Pastor? Verse Isaiah 59:2. Isaiah 59:2. Okay, Pastor. Thank you. यशाया 59 हमें इस बात को लेके आता कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। After that it says, I will forgive their sins. What a relief when our sins are forgiven. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। ये कितना धन्य की बात है और हमारे लिए एक आशीष की बात है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। When sins are forgiven, it means that they are removed and restoration has taken place. When sins are forgiven, they are removed, restoration has taken place in your life and in the church and in the community. जब हमारे पाप हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का बदलाव हमारे जीवन के अंदर, कलीसिया के अंदर और समाज के अंदर एक परिवर्तन को हम देख पाते हैं। The other thing that God will do, he says that he will promise to do, he will heal their land. परमेश्वर इस बात को कहता है कि वो जो देश है, जिस देश में हम रहते हैं, उसको वो चंगा करेगा। Everything will be restored when God says that he will heal our land. हर एक चीज हमारे जीवन में सुरक्षित रहेगी या बढ़ोतरी रहेगी जब हमारे देश में जो का तो परमेश्वर करने जा रहा है। Things that we are facing in the world today, climate change, all these things, God needs to heal our land. And these are the steps that we need to do as believers and as Christians so that God will heal our land. God bless us. और यही हमें करने की चीज है, जैसे जो हमें कदम बताए गए हैं, इन कदमों को जब हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, समर्पण करते हैं, प्रभु के आगे अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हमारा जो देश है परमेश्वर उसको आशीष करेगा और हमारे देश में बदलाव को लेके आएगा।